So we are here at the VinFast plant in Vietnam and सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं इनकी MPV है VF9 एंड यहाँ पर क्या VinFast इस गाड़ी में ऑफर कर रहा है। हालांकि इंडिया में अभी फिलहाल सिर्फ VF6 और VF7 आई हैं, लेकिन ये गाड़ी मे बी VinFast इंडिया में एज एन MPV लेकर आ सकता है। सो इस गाड़ी में what all VinFast is offering in terms of design, in terms of features, and how's the overall cabin space in this VinFast VF9? Let's quickly talk about that. So starting with the front design, you can see the projector headlamp and the DRL setup with the V kind of design and the VinFast logo in the center as well. There are sensors in the front bumper and the radar because it comes with the ADAS level 2 features. There are air vents to make it more aerodynamic, I believe. And the tires that you get in this VF9 are the 21 inches, 275 section tires in this VF9. Over here, this must be the charging port. Yes, this is the charging port. And यहाँ पर भी आपको VinFast का लोगो देखने को मिल जाएगा। साइड में आए तो यहाँ पे आपको स्टेप मिल जाता है, the cameras in both the ORVMs. It comes with a 360-degree camera. प्लस दो हैंडल्स कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसमें मिलता है एंड साइड प्रोफाइल वो प्रॉपर आपको MPV वाला साइज, इट्स अ 3 रो कार, तो भी कुछ इस तरह से आपको साइज देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर भी VinFast की बैजिंग मिल जाती है। क्लैडिंग वगैरह सब कुछ आपको वो प्रीमियम फील देने के लिए आपको पियानो ब्लैक या बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में ही दी गई है। Moving towards the rear of the car, you can see the sensors on the sides and in the rear of the car as well, and there's a VinFast logo, there's a reverse parking camera, there's a badging for VF9, and it also comes with the electric tailgate. This decent amount of space, जो उमन MPV इसमें स्पेस होता है, यहाँ पे आप इसकी दोनों जो सीट है थर्ड रो की, ये आप डाउन कर सकते हैं एंड ये कुछ आपको गुड एनफ स्पेस मिल जाता है। With the third row up, there's decent space to keep couple of your backpacks or trolley bags, but थर्ड रो डाउन करने के बाद थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाता है एंड ये कुछ यहाँ पे आपको ओवरऑल दिया गया है। कैबिन में इंटीरियर में किस तरह का फील है, कितना प्रीमियम है, लेट्स क्विकली चेक दैट आउट। नाउ हियर इन द सेंटर देयर इज अ बिग इनफ, आई थिंक अराउंड 15 इंच स्क्रीन और मोर देन दैट इन द सेंटर ऑफ दिस डैशबोर्ड एंड कंट्रोल्स वगैरह ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है, इंडिया में नहीं है, तो इंटरनेशनली या वियतनाम में जो गाड़ी चलती हैं सब लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन अभी देखने को मिल रहा है एंड लेदर स्टिच वगैरह थ्रू आउट आपको डैशबोर्ड में, स्टीयरिंग में, सेंटर पैनल में, आपको हर जगह डोर्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा। सो वो प्रीमियम एलिमेंट की जो बात है, so that is not missing in this VF9. The overall user material is also really good and there are controls on the steering wheel with some silver accents as well. There's voice command option and you can control your ADAS features from the right side of the steering wheel in this VF9. यहाँ पर armrest है, decent enough space. There are two USB charging points, cup holders for the front passengers and your modes for drive, neutral, reverse and park. And also there's a knob for volume control and turn on and turn off your volume as well. Now let's move towards the second row. How is the overall space in that row? Let's go and check that out. Now there's a separate screen for the second row passengers as well. In the center you can see, and there are controls for seat settings and there are massage options as well for the second row passengers. There's different climate टेम्परेचर सेटिंग, आई थिंक इसमें आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर कर जाएगा। एग्जैक्टली स्पेक्स नहीं है अभी हमारे पास, बट ये को सेटिंग को देख के अभी फिलहाल यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, सम स्पेस टू कीप योर फोन्स, अ बिग इनफ आर्म रेस्ट फॉर 2 rear passengers, वायरलेस चार्जिंग फॉर द rear passengers and decent enough space under the armrest as well to keep your stuff. Again, प्रीमियमनेस की बात करें तो ओवरऑल लेदर स्टिच वगैरह थ्रू आउट आपको देखने को मिल रही है। सीट्स वगैरह की बात करें, वेंटिलेशन वगैरह भी ऑफर करा गया है, बट जो मिसिंग चीज़ लग रही है दैट इज सनरूफ, जो भी फिलहाल इस वाली गाड़ी में हमें देखने को नहीं मिल रही है। बट अगर ये इंडिया में होती तो ऑफकोर्स पैनोरामिक सनरूफ जैसी डिमांड्स शुरू हो जाती अगर वो नहीं दी जाती तो। एंड ऑल्सो in the B pillar you get the AC vents for the rear passengers as well. Now let's quickly check the third row space, whether it's practical or not. Let's check that out. अब आते हैं थर्ड रो में, तो यहाँ पे टम्बल डाउन वाला ऑप्शन है। कुछ इस तरह से मैं आ गया हूँ यहाँ पे, इसकी सीट को करता हूँ नीचे, यस, बट स्पेस अगेन, थाई सपोर्ट नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। अगेन लेग रूम की बात करूँ, यस, अगर मैं सीट को ऊपर करता हूँ, यस, सो लेग रूम डिसेंट एनफ even for adults for my height 5'9", but thigh support compromise hai. Headroom is also decent enough for average height person. Dedicated AC vents for the third row passengers as well, and USB charging points again for the third row passengers in this VF9. So overall
बीच में अगर आप कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, घंटा 2 घंटा पीछे बैठ सकते हैं, बट लंबी जर्नी पर ऑफ कोर्स नॉट फॉर एडल्ट्स, बट बच्चे यहाँ पर आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक पुल करने के लिए टैब दिया गया है, जिस तरह से उसको पुल करके आप इस सीट को ऊपर करके बाहर निकल सकते हैं। So this is what you get in terms of design and overall cabin feel, space and features in this MPV from the house of VinFast, the VF9। So क्या मानना है आपका VinFast को? VF6, VF7 ऑलरेडी इंडिया में आ गई है, VF9 MPV को लेके आना चाहिए। कार्निवल, MG M9 जैसी गाड़ियों से कम्पीट करेगी। कीमत क्या इसकी रखी जानी चाहिए? बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छा है दोस्तों तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।